देखिए बिल्कुल آپ نے بہت اچھا احاطہ کیا صورتحال کا. اس وقت اب ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ کی طرف سے جو اسٹریٹجی ہے یا ٹیکٹکس آپ کہہ لیں ان کو اس وقت وہ تھری فولڈ ہیں کہ ایک تو ان کو جو ہے نا ایران کو بڑا اسٹرانگ میسج دیا جائے کہ جی اپنا ہرمز جو ہے کسی قیمت پہ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پھر ان کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کورسو ڈپلومیسی بھی ہے ان کو پش کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف آئیں. اب آپ نے دیکھا کہ پہلے تو صرف کوسٹ لائن ہٹ ہو رہی تھی, ان کے وہ والے جو ہے نا تنصیبات ہٹ ہو رہی تھی جہاں سے وہ اٹیک کرتے تھے یہ جو شپنگ فلو ہے, لیکن اب سویلین انفراسٹرکچر ہٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اب کوائٹ کلیئرلی اب جو ہے نا بات یہ زیادہ اب کورسو ڈپلومیسی کی طرف زیادہ ہے. اب ایران ظاہر ہے ریٹیلیشن میں وہ گلف کنٹریز کو ہٹ کر, جو انہوں نے پہلے کہا بھی تھا کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ہم گلف کنٹریز کو ہٹ کریں گے. وہ بھی افسوس کا امر ہے کہ چلیں ادھر امریکی بحری اڈے بھی ہیں یا ان کے بلکہ فضائی اڈے بھی ہیں, ڈفرینٹ ملٹری بیسز ہیں, اور ایران کے پاس یہ ایک ریزن ہے کہ جی وہاں پہ کیونکہ امریکن بیسز ہیں ہم ان کو ہٹ کر رہے ہیں. لیکن اٹیک تو پھر ظاہر ہے بہرحال ان ملکوں پہ ہی ہو رہا ہے اور کوئی اسرائیل پہ نہیں ہو رہا. اٹیکس پہلے بھی جب ہوئے تھے تو 85% میزلز تو گلف کنٹریز پہ ہی گرے تھے, 85% ڈرونز تو گلف کنٹریز پہ ہی گرے تھے. تو یعنی کہ دونوں سائڈ سے مسلمان ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو امبیسڈر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, جو آپ نے کہا نا کہ ایک طرف کوئرسو ڈپلومیسی امریکہ چاہ رہا ہے کرے اور دوسری طرف وہ مذاکرات کا بھی کہہ رہا ہے, لیکن اس کوئرسو ڈپلومیسی سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے جو رائٹرز نے رپورٹ بھی کیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق کہ ہوتیز کو ایران نے کہا ہے ٹو گیٹ پریپیئرڈ. آپ آبنائے ہرموز کے حوالے سے جو اس کو لیوریج کے طور پر ایران استعمال کر رہا ہے, انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑے باب المندب بند کرنے کی. تو اگر ایران اس کو بھی ایک پریشر پوائنٹ, ایک لیوریج کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوگا, اور کیا کوئرسو ڈپلومیسی کین بی اے مس کیلکولیشن آلسو اوور ہیئر؟ جی بالکل, ایران کے تو ظاہر ہے کہ ایران کی ریٹیلیشن میں تو یہ ان بلٹ ہے کہ وہ اس کو وسیع کرتے جائیں گے. پہلے انہوں نے 2 ملکوں پہ کیا, پھر 3-4 پہ کیا, پھر اس سے زیادہ, پھر وہ 5-6 پہ آگے. ابھی جو ہے بالکل ہوتیز جو ہیں وہاں پہ وہ باب المندب کو بند کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب 20% ٹریفک جو ہے شپنگ کی دنیا کی, خصوصاً تیل اور فرٹیلائزرز کی بات کریں تو پھر وہ گزرتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے یا اپنا ہرمز سے, اور جو 10% ہے یا 10 سے 12% وہ گزرتی ہے باب المندب کے ذریعے. اور ابھی یہ بھی اس میں اہم ہے کہ کیونکہ سعودی عرب نے اپنی آدھی سے زیادہ آئل پروڈکشن اس طرف سے جو ہے ان کی جو پائپ لائن بھی ہے انہوں نے باب المندب سے کی والی سائڈ سے گزارنا شروع کر دی, اور اسی طرح یو اے بھی جو ہے اپنی شفٹ کر رہا ہے کافی ساری. تو ایران پھر جو ہے ان کو بھی ہٹ کر سکتا ہے, پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ باب المندب کے ہوتیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ایران کی وہ والی جو آئل شپنگ جو شپ کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا. تو دیکھیں ایران سٹیکس بڑھاتا جا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے بعد وہ مزید بھی جو اگر وہ حزب اللہ کو بھی کہیں, ان کے پاس ظاہر ہے باقی بھی جو اینٹیز ہیں ان کی وہ ان سے بھی, لیکن کیونکہ اسرائیل ابھی تک نہیں آیا بیچ میں تو شاید وہ فوری طور پہ نہ ہو. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے اپنی اس اپروچ میں جو ابھی تک وہ کر رہے ہیں. یہ اب مس کیلکولیشن کی گنجائش تو اس میں بہرحال موجود ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مس کیلکولیشن کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اچانک کہیں بہت زیادہ کیجولٹیز ہو جائیں, وہ پھر ایک دم ظاہر ہے کہ بالکل ایک لیڈر آف ایسکیلیشن جو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ 1 ناچ اوپر جا چکا ہے, وہ پھر اس سے اور زیادہ اوپر چلا جائے گا. یا اگر انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے, جیسے کہ ایران نے کہا کہ اگر انرجی انفراسٹرکچر پہ کوئی حملے ہوں گے تو دیٹس وین دے ہیو آسکڈ دی ہوتیز کہ آپ پریپیئر کریں اور پھر باب المندب بند کریں. بالکل, دیکھیں کیونکہ انرجی کا مسئلہ اس لیے نازک ہے کہ ابھی تو یہ سپلائی ڈسٹرپشن ہوئی ہے جو یہ سارے اس کے بند ہونے سے یا اس کے یا ایٹ لیسٹ وہ 90% تک تو ٹریفک وہاں پہ بند ہی ہے, 10% ہی چل رہی ہے اس وقت اپنے ہرمز میں. لیکن اگر ایران ہٹ کرنا شروع کر دیتا جیسا انہوں نے پہلے کیا تھا, وہ گیس فیلڈ ہٹ کر دیا تھا انہوں نے قطر میں, تو وہ 16% ان کی جو کیپیسٹی ہے قطر کی وہ 2-3 سال کے لیے جو ہے بند ہو گئی تھی اس کے بعد. تو یہ اگر اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں تو پھر یہ سپلائی ڈسٹرپشن کوئی یہ نہیں ہوگا کہ عارضی ہوگی یا تب تک ہوگی جب تک یہ اپنا ہرمز بند ہے, پھر تو وہ کوئی 2-3 سال 4 سال کے لیے ہو سکتی ہے. اور وہ تو دنیا کی اس وقت جو معاشی آلریڈی بہت ولنریبل دنیا کی معاشی پوزیشن ہے اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور صرف وہ نہیں, دنیا کی انرجی سیکیورٹی ہے, پھر فوڈ سیکیورٹی, کیونکہ دنیا کی 1/3 فرٹیلائزرز بھی یہیں سے گزرتی ہیں. تو اس لیے میں دیکھیں سٹیکس بہت ہائی ہیں دونوں طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک خطرناک گیم کھیلی جا رہی ہے اس وقت.
जो इस वक्त जो समझ का रास्ता है वो मुज़ाकरात के जरिए ही है Okay. और उसकी कोशिशें ये नहीं कि नहीं हो रही इस वक्त, अभी भी एज वी स्पीक तो बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, अच्छा बिलवास्ता भी अच्छा, क्योंकि बिलावास्ता भी। अभी कुछ रोज कबल तो ये खबरें जो बड़ा फॉलो करते हैं डिप्लोमेसी को, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने एक तरह से पॉज लिया हुआ है, आई मीन दे आर जस्ट लाइक लिटिल बैक, और देख रहे हैं वो कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिटेलिएट कर रहे हैं और कब ये डिप्लोमेसी की तरफ वापस आते हैं, दैट्स व्हेन पाकिस्तान विल प्ले अ रोल। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसके हवाले से रॉयटर्स ने अननेम्ड सोर्सेस करके उन्होंने ये कहा है कि हूतीज़ ने जब सऊदीज़ पर हमला किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये कम्युनिकेट किया है ईरान को कि क्योंकि हम एक डिफेंस एग्रीमेंट में हैं, सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन वैसे भी अब बड़ी, एक तो पहले सब कह रहे थे मीडिएटर के तौर पे नाजुक है, जाहिर है कि इट हैज़ टू बैलेंस एवरीथिंग, पर एट द सेम टाइम अब अगर सऊदी अरेबिया पर इसी तरह से हूतीज़ के ज़रिए अटैक किया गया तो फिर मामलात पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट चॉइस होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो इसमें बहुत ही चैलेंजिंग मुआशी तौर पे भी है, देख कितना ज़्यादा पाकिस्तान पे असर पड़ा है इसका, सारी सिचुएशन का। फिर ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिकली भी है, क्योंकि ईरान और सऊदी की कशमकश है, ईरान और गल्फ कंट्रीज़ की जब आपस में ज़ाहिर है उनकी हॉस्टिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं, तो पाकिस्तान की तो दोनों तरफ ही बरादराना ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के लिए फिर हैज़ टू वॉक अ टाइट रोप, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक टाइट रोप, वो तो है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अभी तक किया है, मैं समझता हूँ बहुत महारत से किया इसको। लेकिन फिर जाहिर है कि अगर खसूसन सऊदी अरब का जब मामला आता है तो आपने ये सही कहा कि एसएमडीए क्योंकि पाकिस्तान का है सऊदी अरब के साथ, जो एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सही। और मैं समझता हूँ कि ईरान को भी उसका कुछ एहसास है। अच्छा। इसलिए आप देखें कि अभी तक ये जो है ना, बाकी मुल्कों पे जब उन्होंने हिट्स किए हैं, स्ट्राइक्स किए हैं, तो सऊदी पे नहीं की उन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक्स। सही। और अब मसला क्या है? मसला ये भी है कि ईरान के अंदर, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ अपने कमेंट्स में, वहाँ पे एक पावर वैक्यूम है थोड़ा सा इस वक्त। तो जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, बेशक वो आईआरजीसी हो, बेशक वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, या जो पार्लियामेंट है, या प्रेसिडेंसी है, या या इसी तरह फिर उनका ऑफिस है जो सुप्रीम लीडर का, तो वो सब जो है इस वक्त, क्योंकि वो वाली बात तो नहीं है जो अली खमेनाई की हयात में थी कि बिल्कुल ये हर चीज जो सी द बक स्टॉप्ड एट हिम। राइट। अभी तो जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे माहौल भी इस किस्म का है, खसूसन ये जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ अली खमेनाई का, उसके बाद तो बहुत ज्यादा एक सेंटिमेंट ऐसा है जिसमें कि फिर सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि एक से बढ़ के एक वो अपने आप को नेशनल साबित करें। तो उस माहौल में जो इस वक्त हार्डलाइनर्स हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं, तो वो फिर इसमें कई बार फिर जो ईरान से डिसीजंस आते हैं वो फिर समझ नहीं आते कि वो कितनी कोऑर्डिनेटेड हैं, और अगर हैं कोऑर्डिनेटेड तो कितने वेल थॉट आउट हैं, क्योंकि ये भी तो अहम होता है कि कितना वेल थॉट आउट है एक डिसीजन, कि आपने सारे मुज़ामरात देख लिए उसके जो आप एक डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त। तो ये एक फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। इसी तरह अमेरिका के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी जाहिर है कि एक प्रेशर जो इजराइल के वहाँ पे लॉबीज जिस तरह एक्टिवेट हुई है, जहाँ पे जाहिर है कि इस वक्त जो मिड टर्म्स का जो समा है, फिर इजराइल का फैक्टर जो उनका स्पॉइलर का रोल इजराइल जो जेडी वैंस ने भी जो इल्ज़ाम आयद किया है कि इजराइल के अंदर उनकी जो अरकान हैं उनमें से कई हुकाम में से, यानी कि उनकी गवर्नमेंट में से उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दे आर ट्राइंग टू स्पॉइल द पीस डील। तो वो तो बिल्कुल उनकी कोशिश तो शुरू दिन से ही है, और सबसे ज्यादा सूट भी उनको ही करता है कि जंग हो। वो तो चाहती नहीं कि अमन हो बीच में इनके, या रपोशमान हो जाए किसी तरह, बिकॉज उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी नहीं है नेतन्याहू के इस वक्त। तो ये सारे जो है, इसलिए इतने ज्यादा ये जो फैक्टर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी हैं, उसकी वजह से ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। और इसी वजह से ये फिर ये होता है कि उसमें बेशक आप आला तरीन मीडिएशन करें, बेशक जो फरीक है उनका मुफाद अमन में हो, लेकिन फिर बात जो है बनते बनते बिगड़ जाती है कई बार। अच्छा, तो एम्बेसडर साहब, आपने कई बार पहले भी कहा कि चाइना प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, जब सीज फायर भी हो रही थी और उसके बाद एमओयू के लिए भी, और आज चाइना का बयान भी है कि मुज़ाकरात की तरफ आया जाए। व्हाट एग्जैक्टली कैन चाइना डू? क्योंकि लोगों को ये शिकायत रहती है कि बड़ा साइलेंट डिप्लोमेटिक रोल वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या चाइना ही वो मुल्क है जो अपना असर इस्तेमाल करते हुए ईरान पर एक प्रेशर क्रिएट करके मुज़ाकरात की तरफ ला सकता है उन्हें वापस?
देखिए, चाइना का बिल्कुल बहुत अहम रोल इसलिए बनता है, आपने उसकी तरफ इशारा किया कि दुनिया में अगर किसी मुल्क को लेवरेज है ईरान पे सबसे ज़्यादा, तो वो चीन को है। और उसकी वजह क्या है? एक तो 90% तेल उनका वो खरीदते हैं। सही। दूसरा ये कि उनकी जो डिफेंस सारी इंडस्ट्री है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो चाइना की मदद से खड़ा है सारा। वो ये नहीं कि असला उनसे लेते हैं, वो ये है कि सारा जो उनकी जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनकी जो मेटल्स हैं, जो एलॉयज हैं, जो उनके फ्यूल्स हैं, सब कुछ वहाँ से आता है। फिर तीसरा ये है कि अभी अमेरिका ने देखें साफ इल्ज़ाम आयद किया है कि चाइना उनको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो उनको टारगेट्स प्रिसिशन इतनी ज़्यादा है उनकी ईरान की, तो वो इसलिए जो है, मैं समझता हूँ कि चीन को ये सूट नहीं करेगा या अपने हुर्मुज़ का मुसलसल बंद रहना, या एक मेजर सप्लाई डिसरप्शन। तो इसलिए वो फिर एक्टिव होते हैं इस डिप्लोमेसी में। इसलिए पाकिस्तान और चीन की जब आपस में बातचीत होती है, तो इस सारे पस मंज़र में तो वो उस पे ज़ाहिर है कि वो इसी मौज़ू पे ज़्यादा होगी। और चीन की जो सपोर्ट पाकिस्तान को जब मिलती है, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को और भी तक़वियत मिलती है इसमें। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि चीन का रोल और भी अहम होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इस वक्त फौरी एक जंग बंदी हो, देयर हैज़ टू बी अ पॉज फ्रॉम बोथ एंड्स, कि जिसके बाद फिर जो सालसी हैं, जो रीजनल पार्टनर्स हैं, वो फिर एक मज़ाकरात की तरफ ले जा सकें। तो ये पॉज लाना कितना मुश्किल है एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें टिट फॉर टैट है? देखिए, मैं समझता हूँ उतना ही मुश्किल है जितना पिछली बार मुश्किल था जब पाकिस्तान ने ये किया, और उससे पिछली बार मुश्किल था जब पाकिस्तान ने उस वक्त भी किया। 2 बार तो किया आपने। ये ठीक है कि हर बार जो है फिर बार-बार उसी चीज़ को दोहराना जो है इस किस्म के डिप्लोमेटिक फीट्स को इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है। अब उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो ज़ाहिर है कि जो है ना, आने वाले दिन हमें बताएँगे। लेकिन ये दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में होगा कि वो डिप्लोमेसी की तरफ वापस आएँ। क्या रीजनल पार्टनर्स या जो खलीजी रियासतें हैं जिनके यहाँ अमरीकी तनसीबात हैं फ़ौजी, और जिन पर हमले ईरान की जानिब से एज रिटेलिएशन किया जाता है, शुरू में उन्होंने बड़ी कोशिश की और वो ये चाहते हैं कि ये सीज़ फायर भी हो, मज़ाकरात भी हों, क्या नाउ जो रीसेंट एस्केलेशन है दैट लीव्स अ बैड टेस्ट, एंड क्या वो उतने ही चाहते भी हैं अब कि एक मुआहदा हो जाए दोनों के दरमियान, या बार बार के हमलों से अब उनके यहाँ भी कुछ और सोच भी पाई जाती है? देखिए, खलीजी ममालिक में एक मौके पे मैंने ये कहा था जंग के शुरू में, जो बात फिर बाद में साबित भी हो गई, बहुत से कराइन से ज़ाहिर हो गई। मैंने कहा था कि एक वक्त था, उनमें से कुछ रियासतें ये समझती थीं कि जो है ना, ये अमेरिकन्स जो है उनके इंटरेस्ट में होगा कि अमेरिकन्स फिनिश द जॉब। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो हो नहीं सकता, एक आउटराइट मिलिट्री विक्ट्री इसमें नहीं मिल सकती, तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो फिर डायलॉग को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनमें से ज़्यादातर मुल्क जो हैं। क्योंकि जब देखें, जब आउटराइट विक्ट्री नहीं हो सकती, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो एक नेगोशिएटेड प्रोसेस के ज़रिए ही आप इस सारी सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि उनकी ज़्यादातर मुल्कों की सपोर्ट जो है वो डायलॉग की तरफ होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जौहर सलीम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ हो रहा है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं।